the BRNMs. I would like to thank you all for taking out time of your busy schedules to attend this meet. It is my great pleasure to introduce you to Powerica, a trusted legacy business established in the year 1984 under the dynamic leadership of visionary late Mr. Naresh Chandra Oberoi. Today we have honor of having with us the esteemed presence founders and driving force behind the group. We have with us Mr. Bharat Oberoi sir, who is the Chief Managing Director, the Chairman and Managing Director of the company. We have with us Mr. Pradeep Gupta sir, who is the whole-time Director of the company, and Mr. Ritesh Agarwal sir, who is the Chief Financial Officer of the company. I would like to throw some highlights on Mr. Bharat Oberoi sir. A seasoned industry veteran with 30 plus years of domain expertise in the generator set sector. The issue is opening on Tuesday, March 24th and it's closing on Friday, March 27th. Anchor day is Monday, 23rd. The price band on the upper hand is 395 and the IPO structure is its primary of 700 crores and offer for sale of 400 crores. Now I would seek your support to make this issue a stupendous success. Good idea of where we started from and where we are today. Okay, so I have two ways of doing it. Yesterday I did it sitting, but I'll try and do it standing this side because this is a bit. I'm just going to do it standing. Okay, is that all right for everybody? Okay. This is just the IPO detail. I'm sure you've read the details. So yeah, the company was started by my late dad, Mr. Naresh Chandra Oberoi, our chairman and MD. It was in the beginning of 1980s, where I think most of Tamil Nadu and a little bit of Maharashtra and Gujarat had just started the industrial process. We were just getting into industries. While the industries were trying to grow, they found this huge gap where the power would not be there, not sufficient enough for the week, and you would be shutting the factory 2 days, 3 days a week. Keep them as holidays because there's no power, not because you didn't have the workers or the production capacity for that matter. So that was the glitch that my father saw, and so he went to Delhi because what was happening, these industries that were coming up, they were getting what we call diesel generating sets. You must have seen the green boxes all around Gujarat, also the green color boxes with the acoustics. So they were getting the gensets, but in a very unorganized way. So there was an engine supplier, there was an alternator supplier, there was a base frame supplier who was separate, there was a control system supplier who was separate, there was an AVM pad fellow who was separate, and to integrate it there would be another contractor you have to hire to come and integrate it for you at the site. It was a big nightmare because delays used to happen a lot. Now what were the delays? The engine alternator would come, the rest of the equipment would not come. You pay for the engine alternator and wait for the rest of the equipment to come to make it, integrate all these components to make a genset, attach it to your to your cables or whatever, and whenever the electricity power goes, this comes on, which is either manually or by what you call today's AMF, an auto mains failure, it comes on automatically. Thank you, Bharat. Thanks, lovely audience. So, करीब 2008 में हम लोगों ने फर्स्ट विंड फार्म गुजरात में लगाया था और स्ट्रेटेजिकली डाइवर्सिफाइड करने का डिसीजन 2004-05 से हम लोगों को आया था कि विंड पावर का काफ़ी पॉलिसी गुजरात से शुरू हुआ था कि विंड का काफ़ी स्कोप गुजरात में था, विंड की पॉलिसी गुजरात से स्टार्ट हुआ
और एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, ATI का बेनिफिट कि जो भी जनरेशन विंड का था उसके ऊपर इनकम टैक्स का माफ था। और हमारी कंपनी में कैश पॉजिटिव शुरू से ही रहा है DG सेट की इनकम के ऊपर। तो उस पॉलिसी के अंदर जो भी एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का बेनिफिट, ATI का बेनिफिट, तो हमें लगा कि क्यों ना ग्रीन पावर बनाई जाए और एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लिया जाए। तो वहाँ से हम लोगों ने गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा था और 2008 में पहला प्रोजेक्ट जामनगर के अंदर 5 मेगावाट का लगाया था। तो वहाँ से हमने बिगिनिंग किया, शुरू किया। जब स्टार्ट किया था तो उस समय ये नहीं सोचा था क्या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ से ऊपर का आज हम कर चुके होंगे गुजरात के अंदर। उस समय तो हम लोगों ने हार्डली 5-6 करोड़ रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था गुजरात में। लेकिन मन में था क्यों ना इसकी थोड़े डिटेल में जाया जाए। और ये विंड पावर क्योंकि जनरली उस समय डेनमार्क से, जर्मनी से टेक्नोलॉजी आती थी, तो उन लोगों को जो IPP OEM सप्लायर थे उनको थोड़ा दिक्कत आती थी इंडिया में लोकल प्रोजेक्ट को लगाने में, राइट ऑफ वे करने में, लैंड परचेज करने में, रेगुलेटरी के साथ डील करने में। तो उनको कोई ना कोई BOP पार्टनर्स इंडिया में रिक्वायरमेंट रहती थी। तो हम लोगों को उसमें कुछ बिजनेस समझ में आया कि क्यों ना BOP का बिजनेस किया जाए, मशीन इंपोर्ट की जाए या मशीन को डेवलप किया जाए और BOP का बिजनेस पावरिका में किया जाए। सारी बातें की हमने बताया। हमारे बिजनेस में बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे हम कमेंस जेनसेट का, जो जेनसेट है पावर्ड बाय कमेंस इंजन, दूसरे जेनसेट है लार्ज जेनसेट जो Hyundai इंजन से है, तीसरा हमारा बिजनेस है अलाइड, चौथे और विंड बिजनेस में हमारे हैं IPP एंड EPC। यदि हम बात करें तो हमारे बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन आता है विंड से आता है 80 से 85% और जेनसेट में आता है 80 से 85% और विंड में आता है 15 से 20% का रेवेन्यू। तो यदि हम पिछले वर्ष की बात करें 2025 की, तो हमारे जेनसेट से 80-85 थी और विंड से 15% थी। और अभी 6 महीने की बात करें तो हमारे जेनसेट में 80 है और विंड में 20% है। यदि हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, EBITDA का कंट्रीब्यूशन, तो विंड से लास्ट ईयर में हमारे विंड से 45% थी और जेनसेट से 55% की EBITDA हमने जनरेट किया था। सो ये सिमिलर लाइन पे अभी चल रहे हैं। यदि हम बात करें हमारे रेवेन्यू ग्रोथ की, सो पहली लाइन यदि हम देखते हैं तो वो है जेनसेट पावर्ड बाय कमेंस। उस लाइन पे हमने भारत सर ने बताया कि 2024 में हमारी CPCB 4 की इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, जिसके कारण थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ। सो 2024 में जब ये न्यूज़ आई थी होने वाली है और Q1 2025 में जब ये चालू हुआ, तब उसके साथ ही प्री बाइंग होती है, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि ये एक होने वाला है, प्राइस बढ़ने वाली है, लोगों ने खरीदी। सो 2024 में हमारी प्री बाइंग हुई, जो 2025 के Q1 में भी थोड़ी बहुत रही, जिसके कारण हमने, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप हमारे इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ बढ़िया है, तो हमें इंजन बहुत ज़्यादा मिल गए थे हमें, और साथ में तो हमारे Q1 में रेवेन्यू हमने बनाया। बट क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हो गई, चेंजेस आ गए, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहे थे, तो हमारे थोड़े सप्लाई में डिस्ट्रप्शंस हुई कुछ पीरियड के लिए। एंड क्योंकि प्राइस बढ़ गए, तो जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आपको होती है, क्योंकि मार्केट को सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे हमारे प्राइस जेनसेट में एवरेज 25 से 30% की वृद्धि हो गई। यदि बढ़ जाती है तो आपको थोड़े सपोर्ट करने पड़ते शुरू में। जो पिछले बार जब CPCB 1 से CPCB 2 हुई थी तो सिमिलर था। तो हम यदि हम आने वाले 6 महीने की जो बात करते हैं, यदि सितंबर 2025 की बात करते हैं, जो H1 FY26 की बात करें, तो उसमें हम हमारे EBITDA परसेंटेज में जो नॉर्मलाइज होती है हम वापस आ चुके हैं। सो कमिंस के बिजनेस में इन स्पाइट ऑफ द डिसरप्शंस हमारी ग्रोथ रही है 2023 से 24, 24 से 25, और इवन करंट में हम उसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में चल रहे हैं। दूसरा लाइन है हमारा MSLG।
MSLG बिजनेस हमने बात की वो प्रोजेक्ट के लेवल पे चलती है। सो उस प्रोजेक्ट में जैसे ये बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं और 3 से 4 साल, कुछ प्रोजेक्ट में 5 साल भी लगते हैं। इसका रेवेन्यू स्टैगर्ड नहीं होता। जिस साल में हम जेनसेट सप्लाई करते हैं वहाँ की रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे FY 23 में हमें दिख रहा है कि हमारा रेवेन्यू जेनसेट का बहुत ज़्यादा है MSLG में, और दूसरे सालों में वो कम आता है। सो दूसरे सालों में कम होने का कारण क्योंकि वहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क और कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तीसरा आता है अलाइड बिजनेस। अलाइड बिजनेस इज प्रॉमिसिंग, वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, जो हमारे 251 करोड़ से 342 करोड़ FY 25 तक रहा, और अभी हमने 6 महीने में 171 करोड़ कर चुके हैं। IPP के बारे में हमने बात किया। सो IPP यदि हम देखें 2024 से 2025 में 219 करोड़ से 201 करोड़ होता है। इसका कारण यह है कि हमारे पास एक एसेट तमिलनाडु में थी। 2024 में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे हमें वहाँ के लोकल बायर्स, लोकल कैप्टिव कंज्यूमर ने हमें अप्रोच किया कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है पावर परचेज ब्रेक की, और हमारे पास 10 साल का लाइफ बचा हुआ था। तो उस अपॉर्चुनिटी की एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी हमें मिली और हमें प्राइस बहुत अच्छे मिले। दूसरा, हमें गवर्नमेंट से पावर परचेज ब्रेक का एग्रीमेंट मिला। सो उस अपॉर्चुनिटी को हमने कैपिटलाइज किया और हमने उस एसेट को बेच के वन टाइम प्रॉफिट कमाई 25-85 करोड़ रुपए, जो हमारे 2024 की प्रॉफिटेबिलिटी में आती है। सो 226 करोड़ हम देखते हैं, उसमें 85 करोड़ रुपया वन टाइम गेन है। सो वो एक हमने ले लिया। यदि हम उस प्रोजेक्ट को तमिलनाडु में चलाते तो हमें 10 साल में 45 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट बनती। वो 10 साल में बनती, हमें आज 85 करोड़ मिली, तो वो वाइज डिसीजन थी। हमने